तो कंटिन्यू करते हैं हमारे प्लेलिस्ट के साथ। तो आज प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, तो उसमें हम बात करने वाले सबके ड्रीम अपॉर्चुनिटीज के बारे में। दैट इज गूगल की स्टेप इंटर्न, जो मोस्टली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो इस समय हमें बस चिल और एंटरटेन नहीं करना है, उसके साथ हमारा फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो चलो चलते हैं प्लेलिस्ट के तौर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गूगल की स्टेप इंटर्न की हायरिंग प्रोसेस कैसी होते हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और कुछ प्रो टिप्स टू लाइक क्लियर दिस इंटर्नशिप। तो एंड तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी व्हाट इज गूगल स्टेप इंटर्न। ये होता है स्टूडेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जिसमें तुम्हें 10 या 12 वीक की इंटर्नशिप होती है, जिसमें तुम्हें टेक के बारे में एक्सप्लोर करने की, उसके साथ गूगल के एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन में रहने की, उनके साथ मिल के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस तरीके से तुम्हें उनकी तरफ से नॉलेज गेन हो। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये तुम्हारे आगे के फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देती है। तो बी प्रिपेयर वेल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज मोस्टली फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। एंड उसके लिए तुम्हें एक प्रोफिशिएंट लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा, पाइथन कोई भी चलेगी। थर्ड, तुम्हारे पास फुल टाइम काम करने की अपॉर्चुनिटी हो उस टाइम के दौरान। दिस इज मोस्टली समर इंटर्नशिप लाइक May to July, so you should be available on that time for the on-site internship. Or third step, like you should have to apply this opportunity at the time of the September, October. Sometimes it will be late लाइक नवंबर। तो जब भी ओपनिंग अवेलेबल होती है, यू कैन टेक द रेफरल और यू कैन लाइक डायरेक्टली अप्लाई बाय गोइंग टू द गूगल पोर्टल। सो ये फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, तो डोंट गेट पैनिक इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे। दे आर मोस्टली लाइक selecting the student who don't have a experience, like this is the step intern for the freshers. So like well prepared resume with a proper knowledge of a DSA coding and all. So after applying, there is a possibility that you will get a call within like 1-2 month, or it may be get late 3 month also. After you got call, that is first round is for phone screening round. In the phone screening round, they mostly like ask you about your education background, courses and CGPA and all. After that, there is a chances like they will ask you some concept related questions of any DSA topic, time complexity, oops and all. There is a possibility they will ask. And after clearing the phone screening round, they will take your technical round also, that is 100% based on the DSA. So they will ask you any DSA question, and you need to code that within the 45 minutes on a docs. So no like coding platform they will provide, you need to write the code from the scratch within that 45 minutes. So if you know the like, direct like optimal solution, don't jump to the optimal solution, just explain the brute force and then write the optimal solution. So like Google only won't see that you are able to solve the question or not, they will see the logical building skills yours, as well as how loud you are speaking in the interview, like how much are you clear on the concept. Similarly, round 2 is also 100% like based on the DSA, they will ask you DSA questions, and that also 45 minutes round also. And similarly, they will check your logical thinking about the question, how you are going to explain this question very well manner. So like well prepare. So try to write the code from the scratch at the time of the prepare only, so you won't get stuck at the time of the actual interview. So if I want to tell you the like overall process in a short manner, you can see on the screen. This is like you should have to go to the Google portal, apply. After that, resume shortlisting, there are 1 or 2 Google Meet interview round, and then you will get the selection and rejection email from the HR. दिस इज द सिंपल हायरिंग प्रोसेस। तो अब तक हमने बात करी हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो अब मैं बताऊंगी कि करना क्या है छुट्टियों में टू क्लियर दिस लाइक अपॉर्चुनिटी। तो तुम्हें डेली 1-2 घंटा कोडिंग के लिए देने, लीड कोड पे जाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बिफोर लाइक जंपिंग टू द क्वेश्चन, उस डीएसए टॉपिक रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको क्लियर करो पहले। सो जब क्वेश्चन पे जाते हो और करते हो, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे।
मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि टाइमर ऑन करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो और डायरेक्टली हार्ड पे मत जंप करो, ईज़ी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन करो, कंसिस्टेंट रहो, 1 और 2 ही क्वेश्चन करो बट करो डेली। You can like set a goal like solving the daily problem of the day also। डीएसए का टॉपिक्स पहले थ्योरेटिकली कंप्लीट करना, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको कोड करना। साथ ही साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान भी देना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप दिस पार्ट बट दिस इज ऑल्सो प्ले अ क्यूरिकल रोल एट द टाइम ऑफ द हायरिंग प्रोसेस। सेकेंड, तुम अपना रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तुम्हारी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है जो तुमने कॉलेज के दौरान करी है या तुमने जो भी प्रोजेक्ट्स करे हैं उनके बारे में नीट एंड क्लियरली रेज्यूमे मेंशन करो। मैंने ऑलरेडी रेज्यूमे बिल्डिंग पर वीडियो बना रखा है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दैट। और रेज्यूमे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम अपनी जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुम लोग कोडिंग कर रहे हो उसको मेंशन करना मत भूलो, क्योंकि मेरे अनुभव से तो ऐसा ही है कि गूगल के एचआर रेज्यूमे मैन्युअली चेक करते, तो दे विल विजिट योर प्रोफाइल, so they will see how much consistent you are. So if you are consistent in solving the DSA coding problem, that boost your chances of resume selecting। तो उसके बाद ये सारी मैंने अभी तक उसके बारे में, हायरिंग के बारे में बताया, ऊपर से कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताया। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि लाइक प्रैक्टिस करते रहो। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो डोंट गेट पैनिक, टेक अ पॉज़ ऑफ लाइक 10-15 मिनट, फ्रेश अप योर माइंड एंड देन start to think about this question। Most of the student lose the like patience and hope if you are not getting question in a one take or one way। So don't like lose your patience, be consistent in solving the question। If you are not able to solve the question today, but you will able to solve the question after the 5 day if you are continuously like thinking about that question। so the so be consistent during the solving the problem। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी माइक्रोसॉफ्ट के कोडेक्स प्रोग्राम के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करो, अपने माइंडसेट को अच्छा बनाओ और पढ़ाई में ध्यान दो। एंजॉय तो करना ही होता है, साथ साथ करियर भी अच्छा बना लोगे तो like you will happy, your family will be happy and your surrounding will be happy। So till then, bye bye।